Hello everyone, I am Dr. Amit Kumar Khare, Associate Professor, Department of Management, School of Management Sciences, Lucknow. I am teaching you the International Business Management. Today is my third lecture, and this lecture we are going to discuss the domestic to transnational and international business. What is domestic business? We have already discussed when we do the business within the our country's boundary, that is domestic, and commercialization of goods within the domestic country's boundary. Transnational, you can say when we go from continent to continent, country to country, but we do not have one fixed office in one country. We have a example of Toyota. They are making product for from almost all the countries in the world, but as per the buyer's preferences. The international business, you might have known in my earlier lecture that international business when we go across the our national boundary. So, my first explanation on domestic and international business. Before discussing this, I want to let you know the marketing, how we market our product in international business. Marketing is defined as the set of activities which are undertaken by the companies to provide satisfaction to the customers through value addition and making good relations with them to increase their brand value. What is brand value? It is a nothing, brand is nothing but an idea in the customer's mind. So, customer always give preference to that particular brand whenever he buy a product in the market. What is domestic business? It is nothing but when you commercialize of goods and services limited to the home country only. You cannot go outside of your country. You do not have big prospects, big scopes, only you will have to go through the buyer preferences of your home country. International business, on another hand, is the name suggests the type of business which is stretched across several countries in the world, that is the marketing of products and services is done globally. Now, the global term again comes. What is globally? When you go for the integrated market. In this discussion, we can find a difference between domestic and international marketing of product. But हम अगर यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, उसकी नीड की और उससे गुड रिलेशन की, तो हम जो हैं वो गुड रिलेशन सिर्फ अपने देश के लोगों से ही नहीं बनाते हैं, हम उस देश के लोगों से भी बनाना चाहते हैं जो जिस देश में हम जाके वो बिजनेस करने जा रहे हैं. तो सेवरल कंट्री हैं वो वर्ल्ड की, और जब भी मैं ये काम करूँगा तो वी विल ऑलवेज मेक ए इंटीग्रेटेड मार्केट. इंटीग्रेटेड मार्केट में और डायरेक्ट मार्केट में आपको इंटीग्रेटेड मार्केट मोर सुटेबल लगेगा अगर आप बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट के लिए जाते हैं. वर्क विद इन द कंट्री, आपको देश के अंदर रह के ही काम करना है और देश में ही जो है डोमेस्टिक बिजनेस कर सकते हैं और देश के लोगों को ही आप प्रेफरेंस दे सकते हैं. क्वालिटी इज़ ऑलवेज ए कंसर्न. क्वालिटी तो कंसर्न आप इंटरनेशनल बिजनेस में करें या डोमेस्टिक में करें, दोनों में आपको क्वालिटी कंसर्न है. रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा हमेशा जो है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस. कस्टमर नेचर जो होता है वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि हम अपने देश के अंदर ही प्रोडक्ट को चुन रहे हैं. और मोबिलिटी फैक्टर जो होती है वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. लेस कंपटीशन होता है. अगर हम एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूसरा प्रोडक्ट अगर बनता है तो कंपटीशन है, नहीं बनता है तो हमारी मोनोपोली है. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट
की चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि हमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बायर प्रेफरेंसेस नहीं मालूम होते हैं डोमेस्टिक में, और हमेशा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अपना मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लो वॉल्यूम होता है। लो वॉल्यूम ये है कि हम जो हैं वो अगर हम अपने कंट्री का एग्जांपल ले लें, इंडिया का, तो हमारे यहाँ फेस्टिवल सीज़न में प्रोडक्ट का बाइंग ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा फेस्टिवल में ख़रीदते हैं। जनरली वो प्रोडक्ट को और जनरल ओकेजन्स में नहीं लेते हैं, लेकिन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड यू हैव ए डिफरेंट कल्चर, different geography, different demography, different preference, customer preferences. So, you may go in a large scale. So, the value will be more and product development is more, the competition will be more and customer nature is not homogeneous. Revenue is not less, always revenue involves in a big size. Quality is always a concern. Work within the country is not there. You have to go across your country's border. International business characteristics. What is the characteristics? Work across the country border. आपको देश के बाहर जाके ही बिजनेस करना है। क्वालिटी आपका एज पर कस्टमर नीड होना चाहिए, कस्टमर प्रेफरेंस होना चाहिए, और अगर आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा चाहिए तो बिजनेस का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रेवेन्यू इज़ मच विद द फ्लो ऑफ द बिजनेस। कस्टमर नेचर आर वेरियस। कस्टमर का जो नेचर है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट का अलग अलग है। अफ्रीका का अलग है, अमेरिका का अलग, साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का अलग है, साउथ अमेरिका का अलग है। व्हेन यू गो फॉर द गल्फ कंट्रीज दे हैव ए डिफरेंट नेचर, so they buy a different type of products. Very big logistic management are involved, whether you go from your domestic country to the foreign country or within the foreign country. You have to use a very big logistic system because of big order of import and export are involved. More competition because there are so many countries are making the same product and all are going in a particular country. So, when you go to the particular country, you will always find a more competition for one single product. So, you will have to be very cautious about the risk available in the competition, and you have a chance to promote your product with new product development. You have a chance to promote your product through particular cultural society, the particular driven market. तो हम क्या करते हैं कि हम जब भी अपने देश से प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अक्रॉस द बाउंड्री जाते हैं। क्वालिटी एक उसका मेन फैक्टर है, कस्टमर प्रेफरेंस उसका दूसरा फैक्टर है, और अगर कस्टमर प्रेफरेंस नहीं होगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर आपका बिल्कुल सही है, न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो रेवेन्यू की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ बिजनेस ऑलवेज स्मूथ होगा। ऑलवेज आप उस बिजनेस को अपने देश में ला सकेंगे और पूरे दुनिया का जो कंपटीशन है दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसको बीट कर सकेंगे। लेकिन अगर कल्चरल ड्रिवन मार्केट है, जैसे कि हम फेस्टिवल सीज़न में गल्फ़ कंट्री में वही प्रोडक्ट बेच सकते हैं जो वो लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं। हम यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में और या यू कैन से ऑल ओवर द वर्ल्ड हम वही प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे जो कि क्रिसमस ईव पे बिकता है। इसी तरीके से हम जब फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करेंगे तो हम ऑलवेज उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गो फॉर द वैक्सीनेशन, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज ऑफ क्योंकि उसका रखरखाव जो है वो बहुत कॉस्टली है
और बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर वेरिएशन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी तरह से हम कोई एंटीबायोटिक अगर लॉन्च कर रहे हैं तो हम उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी जान लें, और हम उस एंटीबायोटिक को उस कंट्री में ले जा रहे हैं जहाँ उसकी ज़्यादा नीड है, हम वहाँ पे उसका प्रमोट नहीं करेंगे जहाँ उसकी नीड नहीं है। ऐसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट होगा जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है या सर्विस सेक्टर का है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, तो हम उसी कंट्री में जाएंगे, हम उसी देश में बात करेंगे, हम उसी देश से आपको रिलेट करेंगे बिजनेस को जहाँ पे हमारे स्कोप उस बिजनेस का बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट प्रोसीजर जो है वो हमारा, या तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, एक्सपोर्ट कंपनी टू कंपनी कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जिसमें नंबर 1 है लाइसेंस। अगर हम लाइसेंस लेके उस कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम हो रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी ने आपको आर्डर दे दिया इंपोर्ट करने के लिए कि मुझको 16,000 kg आपके यहाँ से शुगर चाहिए, और आपने उनको एक्सपोर्ट कर दिया। अब वो उनकी इकॉनमी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उनके पास लाइसेंस नहीं है कि वो प्रोडक्ट को फिर से दूसरे फॉर्म में ला के बेच सकें। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं जब, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, हम विद इन 2 to जो एग्रीमेंट होता है हमारा, उसको हमें बार बार जो है रिन्यू करना पड़ता है एज पर द कस्टमर प्रेफरेंस, मार्केट प्रेफरेंस एंड दैट पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द लोकल गवर्नमेंट। और ये जो है लाइसेंस जो है वो हमको अथॉरिटी भी देता है कि हम अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटेंट जो है वो हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन ये जो लाइसेंस बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी आर द बिटवीन द 2 नेशंस है, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। और हम जब भी पेटेंट प्रोडक्ट के लिए जाएंगे तो ऑलवेज वी विल टेक ए डिसीजन टू मेक ए म्यूचुअल एग्रीमेंट सो दैट जो बिजनेस का रिस्क है वो बहुत कम हो जाए और ऑलमोस्ट हमारे लिए वो मार्केट स्मूथ हो जाए। और ये लाइसेंस इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत अहम रोल अदा करता है। और हम जब भी ये लाइसेंस ले लेंगे तो हमारे पास पेटेंट के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी बहुत बड़ा स्कोप है। क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र? हमारी टेक्नोलॉजी है और हमने उसको सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल किया है, बट हमारा जो रूल एंड रेगुलेशन है वो किसी एक गल्फ़ कंट्री को नहीं पता है। तो जब हम लाइसेंस के थ्रू ये काम करते हैं तो हमारा सारा जो लोकल कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन है वो लोकल कंट्री से दैट पर्टिकुलर कंट्री में पता लोगों को चलता है, और हम अपना रिस्क जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कम कर लेते हैं। और हर देश में ऐसा देखा गया है कि एज पर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंट्री दे ऑलवेज चेंज देयर फॉरेन पॉलिसी, देयर कस्टम रूल्स, देयर न्यू टैरिफ। अगर उनके देश में किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जो कि आप अपने देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका बहुत आयात हो गया है, बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन उसका हो गया है, तो वो उस पर एक तरह का टैरिफ लगा देते हैं, जिससे कि आप जब भी करें तो आप यू विल हैव टू पे दैट टैरिफ। तो आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। और इसलिए अगर हमारा लाइसेंस प्रोडक्ट है तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस लाइसेंस प्रोडक्ट को ऑलवेज बाई करें और उस पर टैरिफ को ना लगाएं। लेकिन अगर हम सारे रूल्स और रेगुलेशंस को जानते हैं, लाइसेंस भी है, फिर भी हमको मार्केट रिसर्च करके ही उस पर्टिकुलर मार्केट में जाना है। इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोर्ट
through agent. What is export through agent? It is an organization which takes help through local agent and distributor to promote their product in that particular country. Agent basically open door to international market. कभी कभी क्या है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि हम किस देश में जा रहे हैं, किस देश में हम बिजनेस कर रहे हैं और हम क्या हमको करना है, हमें किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है. तो अगर हम एक्सपोर्ट एजेंट को ले लेंगे बीच में तो हमारा वो प्रोडक्ट आसानी से उस पर्टिकुलर मार्केट में प्लेस हो जाएगा. तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एजेंट इज ए मिडिल मैन बिटवीन द कंट्री एज वेल एज बिटवीन द टू ट्रेडिंग कंपनी. और ये जो हैं कोई भी लाइसेंस से रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड है तो उसके लिए एक ब्रिज का काम करते हैं. ब्रिजेस द गैप बिटवीन द टू पार्टीज. व्हाट आर द टू पार्टीज? दैट मे बी टू कंट्री एंड दैट मे बी टू कंपनी एंड दैट मे बी टू ट्रेडिंग हाउस. सो अब अल्टीमेटली क्या होता है, इफेक्टिवली मेक्स स्मूथ बिजनेस. ये जो एजेंट हैं ये बिजनेस को स्मूथ कर देते हैं और हमारा जो भी बेसिक फंडा है वो ये है कि हमें रेवेन्यू चाहिए और हमारा प्रोडक्ट वहाँ प्लेस होना चाहिए एज पर द नॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंपनी टू कंपनी तो हो ही रहा है लेकिन एजेंट के थ्रू कंट्री टू कंट्री भी हो रहा है. तो ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू कंट्रीज़ और ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है. इसमें किसी भी प्रकार की कोई आप ना वो कंट्री जो है वो छुपा सकती है रूल एंड रेगुलेशन, ना आप छुपा सकते हैं, ना आप प्रोडक्ट को हाइड कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं और बहुत इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है. सो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोर्ट थ्रू एजेंट आर ऑर्गेनाइजेशन takes help through local agent and distributor for placing their product. Agent basically open door to international market for a particular company or country. An import and export agent is a middleman between a country, bridges the gap between two parties, effectively makes smooth businesses, transactions between the countries and the more transparent, more accountability is there. What is the difference between domestic and international business? Domestic business we have a communication and control directly to the customer, but in international market it is very difficult because different country have a different language, different communication system. Laws and regulation are very much understood in your own country, but it is not very much clear in the foreign country. So we must have some rough work before going to the international market to know the laws of that particular country, the tariff, the custom and the buyer preferences as well as the economic condition of that country. The business in domestic country is in single language. In India, if you speak Hindi, almost all state people are easily understand your what you want to communicate. But in international market, different countries have different languages. The most speaking languages in the world are English and Spanish. Both, but English is not speaking by all the countries and Spanish is also not speaking by all the countries. So you will have to be very cautious. तो बिजनेस कैन बी आइडेंटिफाई एंड असेस इन द डोमेस्टिक बिजनेस. आप देश के अंदर बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम आई, आपने बंगाल का मटेरियल था, बंगाल में नहीं बिका, आपने उसको उड़ीसा में बेच दिया, उड़ीसा में नहीं बिका, आपने उसको आंध्रा में बेच दिया. बट आप किसी विदेशी में ऐसा काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ का बिजनेस जो होता है वो पूरा बायर प्रेफरेंसेस पे होता है और उनके टैरिफ और कस्टम रूल्स पे होता है. तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेड? इट इज होलसेल एंड रिटेल ओनली, बट इन इंटरनेशनल ट्रेड you will have to be import trade or export trade or indirect trade. What is indirect trade? When you go for the business in international market, you have to make a
distributor, agent and intermediate. So, he will work as a representative for your company. So, indirect trade is there. In domestic बिजनेस में क्या होता है कि हम होलसेलर बना देते हैं और रिटेलर को होलसेलर माल देता है, और इसमें बहुत से प्रोसेस होते हैं. कोई एजेंट होता है, किसी स्टेट में सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, किसी में स्टॉकिस्ट होता है. इसमें डोमेस्टिक ट्रेड में देयर आर सो मैनी वेज टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. बट इन इंटरनेशनल ट्रेड you either you import the product or export the product, or you make a export agent. Transnational corporations generally are decentralized with many bases in various countries where the corporation operates. Transnational corporations generally are decentralized with many bases in various countries where the corporation operates. Where the corporation operates, हम जहाँ पे टोयोटा हमारा कार बनाता है, इंडिया में भी, चाइना में भी बनाता है, इटली में भी बनाता है और वो इंग्लैंड में भी बनाता है, लेकिन उसका अलग अलग बायर प्रेफरेंसेस है. जैसा जो देश के लोग चाहते हैं वैसा वो प्रोडक्ट को बना के बेचता है. While traditional multinational corporations are national companies with foreign subsidiaries. अगर आपको मैंने अभी पिछले चैप्टर में बताया था कि मल्टीनेशनल जो होते हैं वो मल्टी डोमेस्टिक होते हैं, यानी कि वो आपके देश में आएंगे, आपका कोलैबोरेशन करके भी वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर लेंगे. लेकिन ट्रांसनेशनल में ऐसा नहीं होता है. यही इसका बेसिक डिफरेंस है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर नेशनल कंपनीज विथ फॉरेन सब्सिडरीज. आप अपना यहाँ पे किसी के संग कोलैबोरेशन करके भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं. सो हम जब भी कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर मल्टी डोमेस्टिक. एडवांटेज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज दैट दे आर एबल टू मेंटेन a greater degree of responsiveness to the local market where they maintain facilities. जिस देश में वो जाते हैं वहीं पे वो अपना सेटअप बनाते हैं और वहीं पे वो अपनी बायर प्रेफरेंसेस को नोट करते हैं और वैसे ही प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं. ट्रांसनेशनलिटी आल्सो रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए फर्म इंगेजेस इन वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेस्ले, Deutsche Post, Toyota. A multinational corporation is a corporate organization that owns or controls production of goods or services in at least one country other than its home country. हम जो है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को इस तरह बताते हैं कि हमारा एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओन करता है कंपनी को और उसका प्रोडक्शन यूनिट करता है गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, और एटलीस्ट वन कंट्री में उसका ऑफिस होगा, लेकिन वो अलग दूसरी कंट्री में भी जाके बिजनेस कर लेगा. एक रूल है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में दैट सजेस्ट ए कंपनीज ग्रुप शुड बी कंसीडर्ड ए मल्टीनेशनल इफ इट derives 25% or more of its revenue from out of home country operations. ठीक है. तो however a firm that owns a control 50% of a foreign subsidiary also controls the production of goods or services in at least one country other than its home country. Therefore, would also meet the criteria even if that foreign affiliate generates only a few percentage of its revenue. So, what we have discussed so far, the multinational, the multi-domestic, the multinational corporations, the domestic company, the buyer preferences, the economic conditions, the tariffs and the custom rules, the local political scenario, the export agent, the distributor, the export merchant, and as well as the difference between domestic and international marketing. In the basic difference is that
we have a big arena, big scenario in the international business, international corporations, international companies. But in domestic we have a only few buyer preferences are there. You can communicate in one language, you cannot produce too much product, you cannot promote your product, you cannot uh, immediately sell all your product until and unless buyer required it. But in international market it depends on country to country. If you go to Africa, they buy a different product. If you go to Africa, Europe, you can sell your winter clothes all over the year. All 12 months you can sell the product, because उनके यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, वो ठंड के प्रोडक्ट को किसी भी समय पे बाई कर सकते हैं. बट सेम इज नॉट इन द केस ऑफ साउथ अमेरिका, सेम इज द नॉट केस ऑफ द Africa, same is not the case of Gulf countries. So, when we see the whole scenario, what we are talking? We are talking about the multinational, transnational and domestic. The multinationals are those you can say the multi domestic, and transnational are those who have a office in almost all the country where they are doing the business. In multinational corporations, they have a one office in their own country, but several offices in other country where they are doing the business. So, in international corporations, all these companies are existing. What is international corporations? The multinational corporations को हम इस तरह बता सकते हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक मल्टीनेशनल इंटरप्राइज है, जिसमें हम किसी भी देश में जाके किसी भी देश के बाय प्रेफरेंसेस को समझ के किसी भी देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फॉरेन एफडीआई करके हम उस देश में वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं. लेकिन अगर हम यहीं पे इसको बोलते हैं कि ये मल्टीनेशनल इंटरप्राइज है, तो हम इंटरप्राइज भी बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट टू मार्केट. इंटरप्राइज is a different terms as you read, but there is not very big difference between multinational enterprise. So, transnational corporation are those who have only one all over the world office, and multinationals only one, and all are the global corporation, international corporations. And if you go for the international corporation, you will have to deal with multinational, transnational and global corporations. Thank you.